to this 69th edition of National Film Awards for the year 2023. The National Film Awards, ladies and gentlemen, as my colleague Mamta already reiterated, that it's a highly distinguished and prestigious award ceremony given every year under the aegis of Ministry of Information and Broadcasting to honor this very cinematic excellence which is present here amongst us. Next category of feature films will honor the best feature films made in the languages specified in Schedule 8 of the India's Constitution. तेलुगु फिल्म के लिए फिल्म उपेना को रजत कमल फिल्म के निर्माता मैत्री मूवी मेकर्स पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री यरनेनी नवीन. Yarneni Naveen creates a love story between a young fisherman and an upper-class rich girl depicting love, their harsh realities that confront them and realizations, and finally how love wins. और सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म उपेना के निर्देशक श्री बुची बाबू सना, आपको भी रजत कमल का सम्मान. Another one for Upena, a story of love between young fishermen and upper-class girl, and love knows no barriers and no caste discriminations, as the cliche goes. Huge round of applause for Team Upena, ladies and gentlemen. सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म के लिए अगला पुरस्कार जिसके लिए चयनित फिल्म है कड़ई सी विवासाई. फिल्म के लिए रजत कमल ग्रहण कर रहे हैं फिल्म के निर्माता एवं निर्देशक श्री एम मणिकंदन. A farmer living in a drought-ridden village where everybody has given up on farming but who continues to believe very strongly in organic farming. And this film bags another national award. सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म के लिए फिल्म प्रतीक्षा को रजत कमल का सम्मान और पुरस्कार ग्रहण करने मंच पर पधार रहे हैं श्री अनुपम पटनायक. Put your hands together for Anupam Patnaik for a story of a typical middle-class family's dreams, desperations and aspirations. Pratiksha gets this. Shri Anupam Patnaik on the stage taking the अगला award. पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म के लिए फिल्म एको इगी युम को दिया जा रहा है. इस फिल्म को रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है और फिल्म के निर्माता मिस चिंग सुबाम ग्रहण कर रही है पुरस्कार. Ching Subam Sheetal takes an award for a story of a boy from an isolated fishing community who struggles hard for education. और इसी मणिपुरी फिल्म के लिए फिल्म के निर्देशक श्री मयंगलाम्बम रोमी मैती को भी रजत कमल का सम्मान. मणिपुरी फिल्म एको इगी युम. The film with the central theme of education. और अब सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म, इसके लिए चयनित फिल्म है होम और फिल्म को दिया जा रहा है रजत कमल. फिल्म के निर्माता फ्राइडे फिल्म हाउस प्राइवेट लिमिटेड. पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री विजय बाबू. Vijay Babu gets us a story which is about a middle-aged man trying hard to establish, I just told you about the storyline, a meaningful connection between father and son, and that through with a smartphone. और इस फिल्म के निर्देशक श्री रॉजिन थॉमस को भी रजत कमल देकर सम्मानित किया जा रहा है. जोरदार तालियों से स्वागत करें. Home taking multiple awards. They're taking home multiple awards. और सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म के लिए फिल्म एकदा कायजाला को रजत कमल का सम्मान. फिल्म के निर्माता और निर्देशक श्री सलील श्रीनिवास कुलकर्णी पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं. Ekda Kaizala is a story of a storyteller who believes in the philosophy that you can tell any story, but that has to be from the heart. और सर्वश्रेष्ठ मैथिली फिल्म के लिए फिल्म समानांतर द पैरेलल को रजत कमल का पुरस्कार और पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर फिल्म के निर्माता और निर्देशक श्री नीरज कुमार मिश्रा. Samanandar is a philosophical and supernatural anthology of stories which deal around the subjects of life and karma. Neeraj Kumar Mishra takes the award for this. सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ा फिल्म चाली को रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है. फिल्म के निर्माता परमवास स्टूडियोज. पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री रक्षित शेट्टी. Charlie is a film of a man stuck in a negative and lonely lifestyle who finds meaning in life when a pup comes into his life. और इसी सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ा फिल्म चाली के निर्देशक श्री किरण राज के, आपको भी रजत कमल का सम्मान.
हमारे जीवन से जुड़ा एक विशेष पहलू जिसे इस फिल्म चार्ली में प्रदर्शित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म का पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं फिल्म लास्ट फिल्म शो छेलो शो आपको रजत कमल, फिल्म के निर्माता जुगाड़ मोशन पिक्चर, और पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री धीर मोमाया। Dheer Momaya gets this award for getting us a story of a young man in a remote village who is very passionate about films and but determined to make his own projector. और इस सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म के निर्देशक हैं श्री पैन नलिन, और आपको भी रजत कमल का सम्मान, और ये है सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म लास्ट फिल्म शो छेलो शो। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के पुरस्कार के लिए चुनी गई है फिल्म सरदार उधम। And that is why, ladies and gentlemen, it is not only our right but our duty to rule India. Mr. Doyle! और सरदार उधम के निर्माता राइजिंग सन्स फिल्म्स एंड किनो वर्क्स LLP पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री शील कुमार। Sardar Udham, a biographical film chronicling the inspiring life of Sardar Udham Singh, a freedom fighter seeking reprisal of the Jallianwala Bagh massacre, bags National Film Award. Put your hands together for Team Sardar Udham Singh. सर्वश्रेष्ठ बांग्ला फिल्म है फिल्म काल कोखो हाउस ऑफ टाइम, और ये फिल्म प्राप्त कर रही है रजत कमल, और इस फिल्म के निर्माता हैं औरोरा फिल्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं श्री अंजन बोस। During a contagious pandemic, a doctor is taken hostage by a young woman and finds himself trapped in space and time. And that is a unique concept of the film Kal Kho House of Time, bagging National Film Award in this category. और इसी फिल्म के लिए फिल्म के निर्देशक राजदीप पॉल को भी रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। तालियों से स्वागत करें फिल्म के निर्देशक का। Kal Kho House of Time takes another award home. And for this film, the co-director Sharmishta Mehti is also being awarded with the Silver Lotus. Please put your hands together for Sharmishta Mehti, co-director of Kal Kho House of Time. She's being awarded with Silver Lotus. और ये है सर्वश्रेष्ठ बांग्ला फिल्म काल कोखो हाउस ऑफ टाइम, जिनकी टीम को दिए जा रहे हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म के लिए फिल्म अनूर आइज ऑन द सनशाइन को रजत कमल का पुरस्कार ग्रहण करने के लिए इस फिल्म के निर्माता डॉक्टर गोपेंद्र मोहन दास मंच पर पधारते हुए सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म अनूर आइज ऑन द सनशाइन। Anur Eyes on the Sunshine is a story of a widow who is living alone in a house which is conflicted with a lot of emotions and memories, but finally finds love at the end. Anur Eyes on the Sunshine. Dr. Gopendra Mohan Das takes the National Film Award, ladies and gentlemen. Let's have a huge round of applause for all the awardees so far. Thank और you. सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म अनूर आइज ऑन द सनशाइन के निर्देशक हैं श्री मोंजुल बरुआ। मंच पर रजत कमल का सम्मान ग्रहण करते हुए निर्देशक श्री मोंजुल बरुआ सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म अनूर आइज ऑन द सनशाइन के लिए ये पुरस्कार प्राप्त करते हुए। सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन का पुरस्कार जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस सजी तेलुगु फिल्म RRR को जाता है। फिल्म के स्टंट कोरियोग्राफर श्री किंग सोलोमान को रजत कमल। The intense and well choreographed stunt and action scenes enhance the film's overall cinematic experience undoubtedly. And we loved the way he stormed onto the stage, and we are not surprised. RRR team, yes. go ahead. सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए भी तेलुगु फिल्म RRR का चयन किया गया है। पूरी दुनिया को अपनी कोरियोग्राफी से अचंभित करने वाले कोरियोग्राफर श्री प्रेम रक्षित ग्रहण कर रहे हैं रजत कमल। RRR takes it all. Prem Rakshit,
choreography, action scenes, stunts, cinematic experience that's going to stay with us forever. Yes. सर्वश्रेष्ठ स्पेशल इफेक्ट का पुरस्कार भी फिल्म आरआरआर के नाम। फिल्म के स्पेशल इफेक्ट क्रिएटर श्री वी श्रीनिवास मोहन, आपको भी रजत कमल का सम्मान। Special effects incorporating with advanced VFX techniques that brought out its action and period elements to life. RRR. सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए तेलुगु फिल्म कोंडा पोलम के गीतकार श्री चंद्र बोस को रजत कमल। Awe-inspiring lyrics beautifully describe human relationship with Mother Nature. सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन श्रेणी के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन सॉन्ग के लिए फिल्म पुष्पा द राइज पार्ट 1 के श्री देवी श्री प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। Pushpa. I won't say it. Let's have it for him. Let's have it for him. सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन बैकग्राउंड स्कोर के पुरस्कार के लिए फिल्म आरआरआर के संगीत निर्देशक श्री एमएम कीरवानी को रजत कमल। बेहतरीन दिग्गज प्रतिष्ठित संगीत निर्देशक श्री एमएम कीरवानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करते हुए। बेस्ट स्क्रीन प्ले सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन का पुरस्कार फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के नाम। ये पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं मिस उत्कर्षिणी वशिष्ठ, आपको रजत कमल का सम्मान। And now we request Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, as well as other dignitaries on the dais, Shri Anurag Singh Thakur ji, MOS MIB, Shri Murugan ji, and Secretary Information and Broadcasting to please take seat. और अब हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं दो शॉर्ट फिल्म्स, जिनमें से पहली फिल्म है जो इफी यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इसी के सफर को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो हमारे देश में किस तरीके से फिल्म की शूटिंग और फिल्में बनाने के लिए बेहतरीन सुविधाएं और इन सुविधाओं को नए आयाम दे रही है केंद्र सरकार, इसी को प्रदर्शित किया गया इस शॉर्ट फिल्म में जो भी आपने देखी। और अब मैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी तथा मंचवासीन सभी विशिष्ट अतिथिगण से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि कृपया पुरस्कार प्रदान करने के लिए मंच पर आगे आएं। इस वक्त हम फीचर फिल्म श्रेणी के पुरस्कार की घोषणा कर रहे हैं और पुरस्कार प्रदान करने के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए स्पेशल जूरी अवार्ड के लिए फिल्म शेरशाह को रजत कमल देकर सम्मानित किया जा रहा है। फिल्म के निर्माता धर्मा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं श्री करण जौहर। Karan Johar on the stage. Huge round of applause, ladies and gentlemen, for the film Sher Shah, a story of a young soldier on the border and his supreme sacrifice for the nation, saluting his martyrdom. In fact, it is a sort of tribute to all those who are guarding our frontiers and who keep us safe day in and out. और इस फिल्म शेर शाह के निर्देशक श्री विष्णुवर्धन को भी रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। Another one for Sher Shah, Team Sher Shah, Shri Vishnuvardhan. देशवासियों में देशभक्ति के जज्बे का संचार करती फिल्म शेरशाह। अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ मेकअप आर्टिस्ट का फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की मेकअप आर्टिस्ट मिस प्रतिशील सिंह डिसूजा, आपको रजत कमल का सम्मान। Preeti Sheel gets this award for creating a blend of artistry, research and storytelling that contributes to the film's characters' depth, historical context which made it very challenging and overall cinematic impact. Gangubai Kathiawadi is the brain behind the look of Gangubai is here on the stage. सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर फिल्म सरदार उधम की कॉस्ट्यूम डिजाइनर मिस वीरा कपूर ई, आपको भी रजत कमल का सम्मान। Veera Kapoor takes this award for creating a costume replete with authenticity, contributing to its immersive experience.
transporting audience and creating a connection between the characters and their historical context, all through the costumes that she designed. सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन, इस पुरस्कार की विजेता भी हिंदी फिल्म सरदार उधम। फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइनर मिस मानसी ध्रुव मेहता प्राप्त कर रही हैं रजत कमल का सम्मान। National Award for Production Design, also Sardar Udham Singh team takes another award for this one, Manasi Dhruv Mehta. सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के तहत हिंदी फिल्म सरदार उधम में किए गए अपने कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी री रिकॉर्डिस्ट ऑफ द फाइनल मिक्स ट्रैक का पुरस्कार श्री सिनॉय जोसेफ ने हासिल किया। एक और पुरस्कार सरदार उधम के नाम। Sinoy Joseph gets this award for creating a delicate balance that every sound element was harmonized to create a coherent and impactful soundscape of the film Sardar Udham. सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए बांग्ला फिल्म झिली के साउंड डिजाइनर श्री अनीश बसु को भी रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। Anish Basu gets this award for creating an innovative soundscape with music and sound effects that elevates the overall theme of the film Jhili. जोरदार तालियां इन अवार्डीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन साउंड रिकॉर्डिस्ट लोकेशन सिंक साउंड मलयालम फिल्म चाविट्ट के लिए श्री अरुण अशोक प्राप्त कर रहे हैं। Arun Ashok for Chavitta by capturing the magic of live sound to immensely enhance the spirit of the narrative. Live sound. Huge round of applause. सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के इसी पुरस्कार के लिए फिल्म चाविट्ट के साउंड रिकॉर्डिस्ट श्री सोनू के पी को भी रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले के अंतर्गत फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए संवाद लेखन के लिए श्री प्रकाश कपाड़िया को पुरस्कृत किया जा रहा है। मंच पर पधार रहे हैं श्री प्रकाश कपाड़िया। Let's hear it for Shri Prakash Kapadia. Whatever Gangubai spoke, he is the man. Powerful and incisive dialogues that created the ambience, the milieu and the period, giving life to colorful characters. और फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए संवाद लेखन के लिए ही मिस उत्कर्षिणी वशिष्ठ को भी रजत कमल का सम्मान। जोरदार तालियों से स्वागत करें गंगूबाई काठियावाड़ी की टीम का। An evocative book adaptation based on real-life characters' journey from a small-town innocent girl into a mafia queen, Gangubai. बेस्ट स्क्रीन प्ले सर्वश्रेष्ठ पटकथा के तहत फिल्म नायाट्ट के लिए पटकथा लेखक ओरिजिनल पुरस्कार के विजेता श्री शाही कबीर, आपको रजत कमल का सम्मान। They say his script weaved a web of surprising tales of reversal of roles where the hunters become the hunted. That's interesting. सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार फिल्म इरविन निडल को जाता है। और फिल्म इरविन निडल के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं मिस श्रेया घोषाल। आपको रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ये आपका 5वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। Shreya Ghoshal for giving us a melodious expression about the magic of love and longing through this film. सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार फिल्म RRR को। बड़ा बापनी की जड़ीवान की दोस्ती विधि रात की ये दूरी तकी दोस्ती वेनु ज्वाल की हिमनग मिच्चिन कौगिली दोस्ती। और फिल्म RRR के पार्श्व गायक श्री काल भैरव मंच पर पधारते हुए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार लेते हुए। Kala Bhairav takes the National Film Awards in this category, a soulful rendition of a song about the spirit of freedom, which certainly gives us goosebumps. Let's hear it for him, ladies and gentlemen. सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार फिल्म
लास्ट फिल्म शो छेलो शो को जाता है। प्रकाश बनवू છું પ્રકાશમાં જ વાર્તા બને અને વાર્તામાં જ ફિલ્મ। સમય બધું ખતમ થઈ ગયું, છેલ્લો શો હતો, છેલ્લો શો। तो लास्ट फिल्म शो छेलो शो के लिए बाल कलाकार श्री भाविन रबारी प्राप्त कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार। Bhavin Rabari, a small town boy's fascination for cinema and his adventurous attempts to realize his dreams was played so immaculately by this young prodigy on your stage, ladies and gentlemen. Bhavin Rabari for the film Last Film Show, Chelo Show. नन्हा कलाकार, बड़ा मंच और सर्वोच्च सम्मान। सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार जाता है फिल्म द कश्मीर फाइल्स को। Kashmir has never been an integral part of India, and this is a historical fact. Azadi is a song of terrorism. It's an anthem of free Kashmir, satellite Jangarman of India. फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं मिस पल्लवी जोशी। आपको रजत कमल का सम्मान। Pallavi Joshi for the Kashmir Files, a powerful performance of a woman who strongly defends and takes a stand for her beliefs, portrayed in the movie The Kashmir Files. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Pallavi Joshi for the film Kashmir Files. सर्वश्रेष्ठ सह कलाकार का पुरस्कार फिल्म मिमी को जाता है। नमाज पढ़ते हैं? हाँ। कितने मर्तबा पढ़ते हैं? 10 मरतबा। जनाब, नमाज दिन में सिर्फ 5 मर्तबा पढ़ी जाती है। मैं 2 दिन का काउंट करके बताया ना। आपको बच्चा नहीं चाहिए, पगला गए हो क्या? फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ सह कलाकार का पुरस्कार अभिनेता श्री पंकज त्रिपाठी को। अपने सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए प्राप्त कर रहे हैं ये पुरस्कार श्री पंकज त्रिपाठी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म मिमी को जाता है। ये एक नया तरीका है, इसको बोलते हैं सरोगेसी। किसके जैसी? फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार की विजेता अभिनेत्री कृति सेनन। आपको रजत कमल का सम्मान। The Mimi gets the award for his sensitive performance of the story of a surrogate mother facing social backlash and personal internal conflicts. Beautifully essayed by Kriti Sanan. सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को जाता है। अरे जब शक्ति, संपत्ति, सद्बुद्धि ये तीनों ही औरतें हैं, तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर? तेरी औकात में रख। ठान लिया गंगू ने, समाज में इंसान की तरह जीने का हक मैं लेकर ही रहूंगी। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं अभिनेत्री आलिया भट्ट। Alia Bhatt's versatile performance of an innocent girl trapped in the flesh trade who rises up to become the voice of the woman, Gangubai, underlining the fact that everyone deserves respect no matter what their gender and profession is. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म पुष्पा द राइज पार्ट 1 को। चुप! और फिल्म पुष्पा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री अल्लू अर्जुन। Pushpa, Allu Arjun for an intense, charismatic performance of an underdog challenging an entire corrupt system. Iconic role, certainly deserves another round of applause. अपने अभिनय से जनता ही नहीं ज्यूरी का भी दिल जीतने वाले श्री अल्लू अर्जुन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के पुरस्कार की विजेता है फिल्म गोदावरी। परंपरा म्हणजे काय रे? आजोबांचं आजोबांना येतं, आजोबांचं बापाला येतं, बापाचं आपल्याला येतं आणि मग आपल्यापासून असं
पुढे सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए फिल्म गोदावरी के निर्देशक श्री निखिल महाजन को स्वर्ण कमल का सम्मान जोरदार तालियों से स्वागत करें। निर्देशक श्री निखिल महाजन का। Nikhil Mahajan gets us a sensitive tale about the flow of life and the conflict between tradition and modernity. स्वर्ण कमल से सम्मानित श्री निखिल महाजन। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म के पुरस्कार की विजेता फिल्म है गांधी एंड कंपनी। કાલે નવા સમાચાર આવશે એક બોલમાં સેન્ચુરી જોજો चांदो उग्यो चौक मां। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म के पुरस्कार के लिए फिल्म गांधी एंड कंपनी को स्वर्ण कमल पुरस्कार। फिल्म के निर्माता एमडी मीडिया कॉर्प पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री महेश दान्नावर। Gandhi and Company is a film about changing values in contemporary society while attempting to imbibe the best ethical values in the younger generation. और सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म गांधी एंड कंपनी के निर्देशक श्री मनीष सैनी स्वर्ण कमल प्राप्त करने के लिए मंच पर पधारते हुए निर्देशक श्री मनीष सैनी। Yet another award for Team Gandhi and Company. बच्चों के लिए रोचक बेहतरीन फिल्म गांधी एंड कंपनी। पर्यावरण संरक्षण परिरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म है फिल्म आवास व्यूहम। തീവ്രവാദിയാണോ ഇതൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമേ അല്ല ഗന്ധർവന്മാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള ആളുകൾ शक्ति പ്രാപിച്ചു എന്ന് വേണം കരുതാൻ। पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म आवास व्यूहम के लिए मंच पर पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं फिल्म के निर्माता निर्देशक श्री कृषांत आरके। It's a contemporary tale about human impact on the environment and its disturbing ecological balance as well as its repercussions. सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म है फिल्म अनुनाद द रेजोनेंस। बहुत ছোৱালী বাহিৰলৈ কাম কৰিবলৈ যায়। ইনফ্যাক্ট most of the trafficking victims আমাৰ ফালৰে হয়। You know, most of the time the victims don't even know they're part of the crime. सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनुनाद द रेजोनेंस की निर्देशिका मिस रीमा बोश मंच पर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पधारते हुए। Anunad, the Resonance deals with the burning issues of human trafficking and the stress it creates in this society. And the award goes to Miss Reema Bora. राष्ट्रीय एकता संबंधी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नरगिस दत्त अवार्ड फिल्म द कश्मीर फाइल्स के नाम। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। राष्ट्रीय एकता संबंधी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नरगिस दत्त अवार्ड फिल्म द कश्मीर फाइल्स। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं फिल्म के निर्देशक श्री विवेक अग्निहोत्री। National Integration Award is being backed by the one and only The Kashmir Files, ladies and gentlemen, and the film that deals with socially relevant subject about the integration of the country. Kashmir Files take the National Film Awards here in this category also. Let's put our hands together. Thank you. लोकप्रिय एवं स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म RRR के नाम। యుద్ధాన్ని వెతుక్కుంటూ ఆయుధాలు వాటంతటవే వస్తాయి. लोकप्रिय एवं स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म RRR के निर्माता DVV एंटरटेनमेंट्स LLP पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री कल्याण दासरी। आपको स्वर्ण कमल का सम्मान। An epic saga of India's struggle against colonial rule narrated as a modern legend, RRR. और फिल्म RRR के लिए स्वर्ण कमल प्राप्त करने के लिए मंच पर आ रहे हैं जाने माने निर्देशक श्री SS राजामौली। ये आपका चौथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है और इस प्रकार फिल्म RRR ने 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अपने नाम किए। जोरदार तालियां फिल्मकार के लिए और फिल्म के लिए। RRR bagging 6 awards. निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ प्रथम फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार
फिल्म मेपड़ियान के नाम। റെഡി ക്യാഷ് ഒറ്റയടിക്ക് തരുന്ന ഒരാളെ കിട്ടിയാലേ നിന്റെ പ്രശ്നത്തിന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവും. ജേഷ, എനിക്ക് നിന്നെ സഹായിക്കാൻ തോന്നിയ പോലെ കോടതിക്കും തോന്നുന്നു. फिल्म मेपड़ियान पर्सन अबव मेंशन्ड को स्वर्ण कमल प्रदान किया जा रहा है। फिल्म के निर्माता उन्नी मुकुंदन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री मुकुंदन मर्तिपरम्बिल। Mepadiyan is a film of a young man intends to do good but in the process gets entangled in a web of greed and power. और अब इसी फिल्म मेपड़ियान पर्सन अबव मेंशन्ड के लिए स्वर्ण कमल ग्रहण करने के लिए पधार रहे हैं फिल्म के निर्देशक श्री विष्णु मोहन जी। निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ प्रथम फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार प्राप्त करते हुए निर्देशक श्री विष्णु मोहन जी, जोरदार तालियां, स्वर्ण कमल से सम्मानित किए जा रहे हैं इस फिल्म के निर्देशक। और अब तालियों के साथ तैयार रहें क्योंकि अब बारी है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के पुरस्कार की। इस फिल्म वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चयनित फिल्म रॉकरी द नंबी इफेक्ट। इन रॉकेट्स के जरिए हमें कमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्च करने होंगे। कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट जो आने वाले दिनों में $1 ट्रिलियन मार्केट है, उसका हमें हिस्सा बनना पड़ेगा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के नाम। फिल्म के निर्माता रॉकेटरी एंटरटेनमेंट LLP और मंच पर पुरस्कार ग्रहण करने के लिए पधार रहे हैं श्री वर्गीस मुलान। Rocketry delves into the challenges and the controversies faced by scientists, showcasing his determination, his resilience, and the triumph of truth. One of the films that actually captured the heart of entire nation, Rocketry, The Nambi Effect. और फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के लिए फिल्म के निर्देशक श्री R माधवन भी प्राप्त कर रहे हैं स्वर्ण कमल। जोरदार तालियां, बतौर निर्देशक ये आपकी पहली फिल्म है श्री R माधवन। Ladies and gentlemen, with that, the all awards in the feature film category have been already conferred. We now thank Honorable President Srimati Draupadi Murmu for conferring these awards along with the other dignitaries. They are requested to kindly take their seats, please. और मान्यवर, अब वक्त है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने का। और इस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का सम्मान प्राप्त कर रही हैं हम सब की चहेती जानी मानी प्रतिष्ठित अभिनेत्री श्री वहीदा रहमान जी। श्रीमती वहीदा रहमान, जो हिंदी सिनेमा में आपके तुलनीय योगदान के प्रति सम्मान है ये दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान जी के नाम। Standing ovation coupled with a huge round of applause speaks volumes of the fact that Wahida Rahman, the iconic, the timeless beauty Wahida Rahman, is loved by one and all. And as we take these proceedings forward, we can tell that Wahida ji is visibly emotional right now, the timeless beauty. तथा मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथिगण से विनम्र निवेदन करती हूँ, कृपया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने के लिए मंच पर आगे आएं। और आदरणीय वहीदा रहमान जी, आपसे भी सस्नेह अनुरोध, कृपया दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। करताल ध्वनि के साथ स्वागत करें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित हर दिल अजीज वहीदा रहमान जी का। अनुपम व्यक्तित्व, सादगी भरा सौंदर्य, संतुलित गहरी भाव अभिव्यक्ति के साथ विलक्षण अभिनय प्रतिभा की धनी वहीदा रहमान जी, जो सिनेमा का ये सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाली 8वीं महिला कलाकार हैं। The ever gorgeous Wahida Rahman has received numerous awards and accolades, including Filmfare and national awards for her remarkable performances, unforgettable characters, her enchanting smile that we can see right now. It has won our hearts and it continues to do so, transcending many generations, many decades. Today, Wahida ji, Indian cinema, expresses its deep gratitude for your exceptional contribution, ma'am, and honors you with the most prestigious, I repeat, the most prestigious
accolade in the film industry, the Dada Saheb Phalke Award. 67 वर्षों से अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय, हिंदी समेत तेलुगु, तमिल, बांग्ला फिल्मों में भी काम कर चुकी वहीदा जी भारतीय सिनेमा में अपने किरदारों से अमिट छाप छोड़ गई हैं। 1955 से शुरू हुआ सफर, जो प्यासा, गाइड, कागज के फूल, चौधरी का चांद, साहिब बीवी और गुलाब, खामोशी, कभी कभी, लम्हे जैसी बेहतरीन क्लासिक फिल्मों के जरिए आगे बढ़ता चला गया और उन्होंने भारतीय फिल्मों में न केवल अपना आयाम स्थापित कराया बल्कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को भी मिला एक ऐसा नायाब हीरा जिसकी चमक बढ़ते वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही है। वहीदा रहमान जी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित। This hall undoubtedly is replete with not only applause but the immense love that the entire nation, including the film industry, will continue to have for one and only and very iconic Wahida Rahman ji. Piya to se naina lage re ma'am continues to live across many generations. We want to tell you that, and your smile takes it all. वहीदा जी, आपको इस पुरस्कार के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आपके जीवन भर के अभिनय के प्रति समर्पण को समर्पित है, इसके प्रति सम्मान है ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारतीय सिने जगत के स्वर्णिम युग की नींव दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। माननीय राष्ट्रपति तथा माननीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत आभार। और अब मैं हम सब की प्रिय वहीदा जी से सादर आग्रह करूंगी कि कृपया इस अवसर पर अपने उद्गार हमारे साथ साझा करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें वहीदा जी का। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी और सारे जूरी मेंबर्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। आई फील वेरी ऑनर्ड, वेरी हम्बल्ड। मगर आज जहाँ जिस मुकाम पे मैं खड़ी हूँ, ये सारा मेरी प्यारी इंडस्ट्री की वजह से है। मुझे लकीली बहुत अच्छे टॉप डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स, टेक्नीशियंस, राइटर्स, डायलॉग राइटर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स और संगीतकार सबका बहुत सहारा मिला, बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया। और आखिरी में मेकअप आर्टिस्ट, हेयर और कॉस्ट्यूम बनाने वालों का भी बहुत हाथ होता है। इसलिए ये मैं अवार्ड अपने फिल्म इंडस्ट्री के सारे डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे शुरू दिन से बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया और बहुत सपोर्ट किया। कोई भी एक इंसान एक पूरी पिक्चर नहीं बना सकता, उन सबको हम सब की ज़रूरत होती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अति सम्मानीय वहीदा रहमान जी, आपके हृदय स्पर्शी उद्गारों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपको पुनः दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आपका भारतीय सिनेमा में योगदान सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। और अब मैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से सविनय अनुरोध करती हूं कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। Ladies and gentlemen, Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu. आज के इस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उपस्थित सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, निर्णायक मंडल के अध्यक्षगण तथा सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजन, सभी को मेरा नमस्कार। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी विजेताओं को मैं बधाई देती हूँ। आप सब पुरस्कार विजेताओं के उन सहयोगियों की भी मैं सराहना करती हूँ जिनका सहयोग
आपकी उपलब्धि में सहायक रहा है। वहीदा रहमान जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं वहीदा जी को हार्दिक बधाई देती हूँ। उन्होंने अपनी कला और व्यक्तित्व से फिल्म जगत के शिखर पर अपना स्थान बनाया है। अपने निजी जीवन में भी उन्होंने गरिमा, आत्मविश्वास और मौलिकता से भी युक्त महिला के रूप में अपनी पहचान बनाई है। मुझे बताया गया है कि उन्होंने फिल्मों के काम करने के लिए कोई दूसरा नाम रखने से इनकार कर दिया था, जबकि दूसरा नाम रखना उस दौर का चलन था। उन्होंने कई ऐसे फिल्में चुने जिनमें उनकी भूमिका महिलाओं से जुड़े बंधनों को तोड़ती थी। वहीदा जी ने एक मिसाल पेश की है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए खुद महिलाओं को भी पहल करनी चाहिए। आज श्रेष्ठ अभिनय के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाली पल्लवी जोशी, आलिया भट्ट, कृति सेनन जैसी अभिनेत्रियों ने भी सशक्त महिला चरित्र की भूमिकाएं निभाई है। मुझे खुशी है कि महिला फिल्म निर्देशक सृष्टि लखेरा ने एक था गांव नामक अपनी पुरस्कृत फिल्म में एक 80 साल की वृद्ध महिला की संघर्ष करने की क्षमता का चित्रण किया है। महिला चरित्रों को सहानुभूतिपूर्ण और कलात्मक चित्रण से समाज में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान भी वृद्धि होती है। देवियों और स्वजनों, इस पुरस्कार समारोह में हमने भारत की विविधताओं और उनमें निहित एकता का दर्शन किया है। यहाँ उपस्थित प्रतिभाशाली लोगों ने अनेक भाषाओं, क्षेत्रीय विशेषताएं, सामाजिक मान्यताओं, उपलब्धियां और समस्याओं को सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान की है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कई पीढ़ियों और वर्गों के लोग एक साथ आते हैं। इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं में एक और वहीदा रहमान जी है, तो दूसरी ओर बाल कलाकार भाविन है, जो गुजरात के निवासी है और रवारी जनजातीय समुदाय से आते हैं। मुझे बताया गया है कि मास्टर भाविन फिल्म में मुश्किल से देख पाते हैं क्योंकि उनके गांव से सिनेमा हॉल बहुत दूर है। फिल्म जगत के सभी भाइयों और बहनों, अपनी फिल्मों के जरिए आप सब भारतीय समाज के विविधतापूर्ण यथार्थ से वंचित परिचय कराते हैं। सिनेमा हमारे समाज के दस्तावेज भी है और उसे बेहतर बनाने का माध्यम भी है। आप सभी आर्टिस्ट भी है और चेंज एजेंट भी है। आज सब देश के बारे में जानकारी भी देते हैं और देशवासियों को एक दूसरे से जोड़ते भी है। फिल्म केवल एक इंडस्ट्री नहीं है, ये केवल व्यापार और मनोरंजन तक ही सीमित नहीं है। ये जागरूकता और संवेदनशीलता फैलाने का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम है। मुझे इस वर्ष की पुरस्कृत फिल्मों के बारे में जो जानकारी दी गई है उससे मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। इन फिल्मों में जलवायु परिवर्तन, गर्ल्स ट्रैफिकिंग, नारी का उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और सामाजिक शोषण जैसी समस्याओं का चित्रण किया गया है। जनजातीय समुदाय का प्रकृति तथा कला से प्रेम, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श की स्थापना, विपत्तियों के बीच अदम्य उत्साह से संघर्ष करना, शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति और कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों जैसे विविध विषयों पर अच्छी फिल्में बनाई गई है। मैं लिख सहकर ऐसे फिल्में बनाने वाली सभी लोगों की विशेष सराहना करती हूँ। ऐसी फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार के माध्यम से प्रोत्साहित करने के लिए मैं सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, उनकी पूरी टीम तथा निर्णायक मंडल के सदस्यों को मैं प्रशंसा करती हूँ।
मेरा ये विचार है कि भारतीय फिल्मों को देश की सामाजिक विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का वाहक होना चाहिए। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ऐसी फिल्मों न सिर्फ देश और समाज के लिए हितकारी होंगे बल्कि व्यावसायिक रूप से ही सफल होंगे। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इस प्रयोग को आप और मजबूती से करें। देवियों और स्वजनों, चंद्रयान की सफलता पर सभी देशवासी गर्व का अनुभव करते हैं और इसरो के वैज्ञानिकों के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट नामक फिल्म द्वारा वर्ष 2019 से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इसरो के भूतपूर्व वैज्ञानिक नम्बी नारायण जी की संघर्षपूर्ण जीवन गाथा का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। मैं इस फिल्म की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सार्थक फिल्म में समाज और देश की उल्लेखनीय का चित्रण भी होता है और समस्याओं का भी। सभी देशवासियों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है तथा स्वाधीनता संग्राम में बलिदान देने वाले पूर्वजों का सादर स्मरण किया है। जलियांवाला बाग का नरसंहार और उनके बाद घटनाओं हमारी सामूहिक चेतना का अभिन्न अंग है। आज पुरस्कृत सरदार उधम नामक फिल्म के द्वारा जलियांवाला बाग से जुड़ी स्वाधीनता संग्राम की एक महत्वपूर्ण धारा से दर्शकों का परिचय होता है। परमवीर चक्र से सम्मानित भारत माता के अमर सपूत कारगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाला कैप्टन विक्रम बत्रा ने जीवन गाथा पर आधारित फिल्म शेर शाह को विशेष पुरस्कार प्रदान करने के लिए मैं निर्णायक मंडल की सराहना करती हूं और उस फिल्म से जुड़ी सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूं। राष्ट्रीय एकता के महत्व को रेखांकित करने के लिए इसे हमारी संविधान की प्रस्तावना तथा अन्य प्रावधान में स्थान दिया गया है। सिनेमा द्वारा ऐसे राष्ट्रीय आदर्शों का प्रसार किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मैं कश्मीर फाइल्स की भी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जनजातीय संघर्ष को नेतृत्व प्रदान करने वाले महानायक अल्लूरी सीताराम राजू की जीवनी से प्रेरणा लेकर एस राजामौली जी ने RRR नामक बहुत ही लोकप्रिय फिल्म बनाए हैं। उस फिल्म के एक गीत को बेस्ट सॉन्ग का एकेडमी अवार्ड भी मिला है। मैं उस फिल्म की सफलता तथा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज के पुरस्कारों की लंबी किंतु प्रभावशाली सूची में से मैं कुछ फिल्मों और लोगों का ही नाम उल्लेख कर पाई हूँ। आज पुरस्कृत सभी फिल्में और उनसे जुड़े सभी लोगों ने समाज और सिनेमा को बहुत प्रभावशाली योगदान दिया है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि प्रतिभाओं से समृद्ध हमारे देश में सिनेमा से जुड़े लोग विश्व स्तरीय उत्कृष्टता के नई मानक स्थापित करते रहेंगे। विकसित भारत के निर्माण में फिल्मों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत आभार माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और अब सबसे अनुरोध, कृपया राष्ट्रगान के सम्मान स्वरूप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। Ladies and gentlemen, national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग।
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Ladies and gentlemen, kindly remain seated till Honorable President and the dignitaries on the dais make their way out. We request you to kindly stay put. Requesting...